Hello friends, Kalro School Hall all presenting this video for Standard 8 English Medium subject English. Friends, today we are going to discuss about the lesson from the book It So Happened. Okay, Prince September, that lesson we discussed part number 1 had already published about this lesson. This is part number 2. Okay, those who hadn't seen the part number 1, firstly watch that video so that you will get the idea about the lesson. Now part number 2 we are going to discuss about today. Okay, let's see what will happen with the princess and her bird. Okay, Princess September loves the bird far too much to take a chance. Okay, Princess September loves that bird so much. वो उसको बहुत प्यार करती थी and she didn't want to lose it at any cost. वो एक कोई भी कॉस्ट के ऊपर उसको खोना नहीं चाहती थी. And act upon his sister advice, और उसने हमेशा, because she was a very little in the comparison with her sisters, so that he always obey on the advice of her sisters. Okay, the bird cannot overcome the loss of freedom, और bird जो था वो अपनी आज़ादी को छोड़ना नहीं चाहता था. Bird is always want its freedom all the time. Princess September decided to put the bird's happiness above her own. Princess September ने बर्ड जो थी उसकी जो आज़ादी थी उससे भी बढ़कर उसको अपने पास रखना ज़रूरी समझा. ओके, सो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी. इट सीम टू प्रिंसेस September that her title bird had been away a long time. Okay, it seems to the Princess September. Princess September ने ऐसा लगा कि ये जो छोटा सा बर्ड है वो बहुत देर से बाहर है. इट इज़ आउट ऑफ द पैलेस फ्रॉम मैनी लॉन्ग टाइम्स. Something might have happened to him. Okay, something might have happened to him means perhaps it will be something wrong with it. उसके साथ कुछ गलत हुआ है. What with hawks and with shrines, you never know what trouble he might get into. Okay, तो चील और दूसरे जो शिकारी है उनका तो क्या कहना, बराबर किसी भी वक्त उसके अंदर वो फंस सकता है. Beside he might forget her or he might take a fancy to somebody else. बराबर वो किसी के पंजे में फंस सकता है, बेचारा कहीं नहीं जा सकता है तो क्या करेगा. दैट्स वुड बी ड्रेडफुल. बराबर है, तो ये इसके लिए बहुत ही गलत होगा. बराबर, किसी भी शिकारी ने अगर पकड़ लिया, किसी ने उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, एट दैट टाइम व्हाट विल आई डू. सो दैट कंडीशन वुड बी अ वेरी ड्रेडफुल. ये मेरे लिए बहुत ही ख़राब कंडीशन होगी. शी विस्ड ही वॉर सेफली बैक अगेन. शी प्रे द गॉड दैट वो बर्ड जो है वो कैसे भी करके उसके पास वापस आ जाए. सडनली September heard a tweet just behind her ear and she saw a little bird sitting on her shoulder. और अचानक whenever she turns about the bird, at the same moment द बर्ड जो है वो उसके पीछे ट्वीट ऐसी आवाज़ करते हुए उसकी कानों के पीछे, दैट काइंड ऑफ द नॉइस वर हियर्ड बाय द प्रिंसेस. और ये जो छोटा बर्ड है इट केम आउट एंड सिट ऑन द शोल्डर ऑफ प्रिंसेस September. ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड alighted so softly that she had not heard her. और इतनी शांति से, इतने चुपके से और इतनी कोमलता से उसके ऊपर आके बैठ गया कि प्रिंसेस September couldn't hear the voice of that bird. Okay, I wondered what on earth had become of you, said the princess. The princess said, princess ने कहा कि मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है. बराबर, राजकुमारी ने कहा. I thought you would wonder that, said the little bird. बराबर, लिटिल बर्ड क्या बोला कि मैंने सोचा कि तुम क्या होगी. वंडर मीन्स परेशान होंगी. द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टुनाइट एट ऑल. हकीकत यह है कि मुझे तो आज रात को आना ही नहीं था.
Okay, my father-in-law was giving a party and they all wanted me to say, but I thought you would be anxious. मेरे जो ससुर थे बराबर, उन्होंने आज पार्टी का अरेंजमेंट किया था और सब चाहते थे कि मैं वहीं रहूं, लेकिन मैंने सोचा कि तुम मुझे लेकर टेंशन में होगी, तुम मुझे लेकर चिंता कर रही होगी. दैट्स वाई आई एम हियर. Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. Okay. परिस्थितियों के अनुसार ये जो बर्ड था उसने दुर्भाग्यपूर्ण बात ये कही थी. September felt her heart to thump against her chest. सितंबर का जो दिल था वो अब बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा. And she made up her mind to take no more risk. और उसने निश्चय कर लिया कि अब वो ज़्यादा रिस्क उठाने वाली नहीं है. Means from nowadays she will not permit the bird to went away for out. She put up her hands and took. उसने अपने हाथ उठाए and took hold of the bird. उसने उस पंछी को पकड़ा. The bird suspected nothing and he was so surprised when she carried him over the cage. बराबर बर्ड जो था उसको कोई शक नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया जब राजकुमारी जो थी, राजकुमारी सितंबर जो थी, वो उसको पिंजरे के पास ले गई. पॉप्ड हिम इन. ओके, और उसको उसके अंदर बंद कर दिया. एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट. और उसी मोमेंट उसने ये जो पिंजरा था उसका जो दरवाज़ा था वो क्या कर दिया, बंद कर दिया. ओके, ही कुड थिंक नथिंग टू से. और वो कुछ नहीं सोच पाया. फॉर अ मोमेंट ही कुडंट थॉट एनीथिंग, बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू आइवरी प्रॉच एंड सेड व्हाट इज़ द जोक. और उसने थोड़ी देर बाद अपने दांत के जो बने हुए स्थान पर वो कूदा. बराबर वहाँ पे जहाँ पर स्टैंड के अंदर कुछ ऐसा था जहाँ पे वो बैठ सके, ऐसा एक प्लेस था, वहाँ पे कूद कर वो बोला ये क्या मजाक है. व्हाट इज़ दिस जॉक, कि तुमने मुझे, वाई आर यू पुटिंग मी इन दिस केज ओनली. ओके, डोंट यू ट्रस्ट मी. तो प्रिंसेस सितंबर told her there is no joke. Okay, there is no joke, said the September, but some of the mama's cats are powering about tonight and I think you are much safer in there. लेकिन उसने कहा कि ममा की, मतलब इसकी मदर की कुछ बिल्लियाँ जो है वो आज रात क्या ढूंढ रही है, पाउडिंग अबाउट टुनाइट, मतलब आज रात शिकार ढूंढ रही है, और तुम जो हो वो यहाँ पे क्या होगे, सेफ होंगे. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड. बराबर, तो उसने कहा, पक्षी बोला ठीक है, आज रात के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग. तो तुम मुझे कल सुबह बाहर निकाल दोगी तो मैं इसका बुरा नहीं मानने वाला हूँ. मीन्स आई डोंट माइंड इफ़ यू पुट मी हियर फॉर माई सेफ्टी टू नाइट ओनली, सो आई डोंट माइंड. सेड द लिटिल बर्ड. We just for this once I don't mind, said the little bird, so long as you let me out in the morning. He ate a very good supper and then began to sing. और फिर उसने अच्छा भोजन किया, खाना खाया और फिर उसने गाना गाना शुरू किया. बट इन द मिडल ऑफ हिज सिंग ही स्टॉप्ड. बट बीच में वो रुक गया. आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विथ मी, ही सेड. उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, बट डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट. लेकिन मुझे आज गाने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज इट वॉज इन द केज ओनली, सो ही थॉट दैट मुझे आज गाने का मन नहीं कर रहा है. वेरी वेल सेड द सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड. ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाकर सो जाइए, प्रिंसेस सितंबर ने कहा. सो ही पुट हिज हेड अंडर द विंग एंड इन अ मिनट वॉज अ फास्ट एज लीप. और वो जो इसने पंख जो है वो अपना सिर अपने पंखों में घुसाया और विद इन अ मिनट ही वॉज एज लीप, वो सो गया. सितंबर वेंट टू स्लीप टू. सितंबर भी सोने के लिए चली गई. But when the dawn broke, she was awoken by the little bird calling her at the top of his voice. लेकिन सुबह जब उठी तो ये जो बर्ड था वो ऊंची आवाज़ देकर उसको जगा दिया.
वॉक अप ही सेड, उसने क्या कहा, वॉक अप, open the door of this cage and let me out. I want to have a good fly while the dew is still on the ground. तो उसने कहा मुझे बाहर उड़ना चाहता हूँ जब ये ड्यू जो है वो पृथ्वी के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, धरती के ऊपर गिर रही है, तो उस टाइम पे मुझे उड़ने का मन कर रहा है. यू आर मच बेटर ऑफ वेर यू आर, सेड सितंबर. सितंबर ने कहा कि तुम जहाँ पे हो वहीं ठीक हो, बराबर, तुमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. तो लेट मी आउट सेड द लिटल बॉय. लिटल बॉय ने कहा मुझे बाहर निकालो. एंड ही ट्राई टू स्लीप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उसने जो बार थे, बराबर, सलिए जो थे, उसकी सलाखों से बाहर निकलने की कोशिश की केज के. बट ऑफ कोर्स कुडंट एंड ही बैट अगेंस्ट द डोर. लेकिन वो नहीं कर पाया और उसने क्या किया, बीट अगेंस्ट द डोर, दरवाजे को ज़ोर से ठोकर मारी. बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, लेकिन वो उसको खोल नहीं पाया. देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड हिम, और 8 राजकुमारियाँ जो थी वो अंदर आई और उससे देखने लगी. दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू मेक देयर एडवाइस, और उन्होंने उसको कहा कि तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो कि तुमने हमारी सलाह मान ली. दे सेड ही वुड सून गेट यूज्ड टू द केज एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही एवर बीन फ्री. उन्होंने कहा ये जो बर्ड है उसको पिंजरे में ही रहने की आदत पड़ जाएगी थोड़े दिनों बाद, और ये जो है वो भूल जाएगा कि वो क्या था, फ्री था. द टाइटल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, बट एज सुन एज दे वर गॉन ही बिगेन क्राई अगेन, लेट मी आउट. जब तक वो राजकुमारियाँ वहाँ खड़ी थी तब तक तो वो बर्ड कुछ नहीं बोला. आफ्टर दैट द प्रिंसेस वर, ऑल द प्रिंसेस, 8 प्रिंसेस वर वेंट आउट फ्रॉम देयर. ओके, जैसे ही वो वहाँ से गई तो फिर से वो चिल्लाया कि मुझे बाहर निकालो, बराबर. ही डिडंट सर्वाइव हिमसेल्फ इन द केज. डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, सेड सितंबर ने कहा बेवकूफ़, उसे इतने बेवकूफ़ मत बनो. आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू. मैंने तुमको पिंजरे में इसलिए डाला है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो. आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू. मुझे तुमसे ज़्यादा पता है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बराबर है. सिंग मी अ लिटल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर. तुम मुझे थोड़ा सा एक गाना सुनाओ तो मैं तुमको एक मिठाई खिलाऊंगी. बट द लिटल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर संग अ नोट. लेकिन ये बर्ड जो था, ही इज़ ऑलवेज हैबिचुअल टू फ्लाई इनटू द स्काई, सो ही डिडंट स्पीक एनीथिंग. और वो पिंजरे के पास खड़ा रहा और उसने आसमान को देखता रहा. व्हाट्स द गुड ऑफ स्लकिंग, सेड सितंबर ने उसको देखा और उसको देखते हुए कहा कि भाई क्या परेशानी हो गई है, बराबर, क्या तुमको क्या प्रॉब्लम है. एक गुस्से में उसने कहा कि गुस्सा होने से क्या फ़ायदा होगा, बराबर. व्हाट्स गुड ऑफ स्लकिंग, गुस्सा होने से क्या तुमको फ़ायदा होगा. वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट ऑल योर ट्रबल्स, तुम गाना गाकर अपनी परेशानी क्यों नहीं दूर कर देते हैं, बराबर. इस तरीके से परेशान होने से तुमको क्या मिलेगा. हाउ कैन आई सिंग, आंसर्ड द बर्ड. आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड लेक एंड द ग्रीन एंड ग्राउंडिंग इन द फील्ड. मैं कैसे गाना बंद कर सकता हूँ. मैं तो झाड़ों को देखना चाहता हूँ, झील को देखना चाहता हूँ, खेतों में हरे भरे घास को देखना चाहता हूँ. ये मेरी हैबिट है और मैं इसमें पिंजरे में कैसे गाना गा सकता हूँ. आई विल टेक यू आउट एवरी डे, सी सेड. उसने कहा कि मैं तुमको रोज़ बाहर ले जाऊँगी. उसने कहा पिंजरे के साथ. इट्स नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटल बर्ड. बर्ड ने कहा ये एक सी बात नहीं है. द राइस फील्ड्स एंड the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. जब तुम एक सलाखों के पीछे से ये सारा कुछ खेत है, सारा कुछ जो फील्ड है वो सब देखते हो तो वो एकदम अलग दिखाई देता है. दिस इज़ नॉट द सेम, प्लीज़ लीव मी आउट, बराबर. मुझे यहाँ से बाहर निकालो. आई वॉन्ट टू free, okay, I want to become free. The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat
अ थिंग, उसने कुछ गाना ही नहीं गाया और उसने कुछ खाना भी नहीं खाया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटल एनेक्सियस एट दिस, प्रिंसेस ये देखकर थोड़ी चिंता में चली गई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने अपने सिस्टर से पूछा कि तुमको उसके बारे में क्या लगता है। यू मस्ट बी फ्रीम दे सेड, उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने डिसीजन में अड़े रहना चाहिए। बट इफ़ ही वॉन्ट इट ही विल डाई, सी आंसर, उसने कहा अगर वो खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। दैट वुडन बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, बराबर ऐसा उसके साथ नहीं होगा। दे सेड, उन्होंने कहा कि ये जो है वो राजकुमारी जिन्हें उसको कहा कि वो खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, बराबर है। तो उन्होंने कहा कि वो उसकी प्रॉब्लम होगी। दे सेड ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज गुड, और उन्होंने उसको चढ़ाते हुए कहा कि उसको ये मानना चाहिए कि तुम ये जो कर रही हो उसके भले के लिए कर रहे हो। If he is out night and dies, it will serve him right and you will be well rid of him, बराबर ये तुम सब उसके लिए ही कर रही हो। अगर वो जिद है, अगर मर जाता है तो मरने दो, अच्छा होगा कि और तुमसे उसको तुमको उससे छुटकारा मिलेगा। तो सितंबर को उसकी जो सिस्टर है वो उसके बर्ड के खिलाफ कर देती है, बिकॉज शी वॉज वेरी लिटल एंड शी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो वो कहती है कि भाई इससे क्या फ़र्क। सितंबर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू हर वेरी मच गुड, बट दे वर 8 and 1 and all older than she सो शी सेड नथिंग। तो सितंबर जो थी वो समझ नहीं रही थी कि उसकी भलाई किस में है, लेकिन वो 8 थी और वो बेचारी अकेली, तो और वो सारी जो थी वो उससे बड़ी थी। दैट्स वाई उसे उनकी बातों को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने कुछ नहीं बोला। परहैप्स ही विल नेवर गॉट यूज्ड हिज केज बाय टुमारो, सी शेर, उसने कहा कि शायद कल तक पिंजरे में वो जो है वो मर जाएगा। The next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. She got no answer. दूसरे दिन सुबह जब वो उठी तो हंसते हुए उसने गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन सामने कोई जवाब नहीं मिला। She jumped out the bed and ran to the cage. वो कूदकर बेड में से कूदकर पिंजरे के पास गई। She gave a stuttered cry, और उसने वहाँ जाकर रोना शुरू कर दिया, घबरा गई। फॉर दिस अ लिटल बर्ड ले, लिटल बर्ड जो था वो वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ था एट द बॉटम, और पिंजरे के जो बॉटम था बराबर वहाँ पे पड़ा हुआ था। ऑन हिज साइड विथ हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज ही वर डेड, और ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका था, बराबर है। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, फिर उसने क्या किया, आंखें बंद थी तो उसने जो पिंजरा था उसका दरवाज़ा खोला और उसको बाहर निकाला। She gave a sob of relief, that for she felt that the little heart was breathing still. तो उसने उसको देखा, तो उसने हाथ में जैसे लिया तो उसने एक्सपीरियंस किया कि उसका जो दिल है वो अभी तक धड़क रहा है, तो उसने एक राहत की सांस ली। वेक अप लिटल बर्ड, से उसने कहा जागो जागो लिटल बर्ड। She began to cry and her tears fell on the little bird. वो रोने लगी और उसके जो आंसू थे वो बर्ड के ऊपर गिरे। He opened his eyes. He opened his eyes and showed that the bars of the cage were no longer around him. उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि जो सलाखें थी उसके आजू बाजू नहीं थी। I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing I die, he said. उसने कहा कि मैं गा नहीं सकता जब तक मैं फ्री नहीं हो जाता, अगर मैं फ्री हो जाऊंगा तो गाना गाऊंगा, अगर मैं गाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट जॉब, राजकुमारी ने एक बहुत गहरी सांस ली, और उसके बाद द प्रिंस देन टेक योर फ्रीडम, सी सेड, उसने कहा कि तुम अपनी आज़ादी ले लो, बराबर। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू एज डाई, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। आई शट यू in a garden cage because I love you and I wanted to have you
टू माई सेल्फ। उसने कहा कि तुम अपनी आज़ादी ले लो, मैंने तुम्हें एक सोने के पिंजरे में बंद किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और मैं तुमको चाहती थी तुम ये सब कुछ छोड़ दो, बराबर है, लेकिन मैं कभी नहीं जानती थी कि तुम ये सारी चीज़ें तुमको मार देगी। बट आई नेवर नो इट वुड बी किल यू। ओके, आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें अपने ढंग से खुश देखना चाहती हूँ। शी थ्रो द ओपन द विंडो एंड gently placed the little bird on the steel. He shook himself a little. उसने खिड़की खोली और छोटे जो बर्ड था उसने खुली जगह पर रख दिया और वो खुद से थोड़ा थोड़ा सा वो हिल रहा था। कम एंड गो एज यू विल, बराबर। तो वो कहती है कि आओ और अपनी इच्छा जहाँ पे है वहाँ पे तुम जा सकते हो। द लिटल बर्ड शी सेड आई विल नेवर यू पुट इन द केज एनी मोर। मैं तुमको ज़्यादा पिंजरे में आज के बाद कभी भी पिंजरे में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटल प्रिंसेस सेड द बर्ड। बर्ड ने कहा मैं आऊँगा, वापस आऊँगा क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू अ लवलीस्ट सॉन्ग, और मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत गाऊँगा। आई नो आई शैल गो फार अवे, बराबर, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत दूर दूर तक जाऊँगा। बट आई यू कैन सी इन दिस पिक्चर द बर्ड, द प्रिंसेस इज़ फ्रीइंग द बर्ड, उस बर्ड को फ्री कर रही है। और उसने कहा कि मैं बहुत दूर दूर तक जाऊंगा। शैल ऑलवेज कम बैक, और वापस भी आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, और उसके बाद उसने फिर से अपने आप को झटका दिया। गुड ग्रेशियस मी गॉड हाउ सिफ्ट आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। और उसने क्या कहा कि उसने जो अपने जो पंख थे उसको खोले और कहा हे ईश्वर मैं इतना अकड़ गया हूँ, बराबर है। और फिर वो बोला उसके बाद देन ही ओपन हिज विंग्स, और उसके बाद अपने अपने विंग्स खोले, उसने अपने पंख खोले। एंड फ्लू राइट अवे इन द ब्लू, और उसके बाद वो आसमान में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स, लेकिन छोटी राजकुमारी जो थी वो फूट फूट कर रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन। अपनी खुशी के चिंता करे बिना, बराबर, किसी अपने को छोड़ देना ये बहुत ही टफ सिचुएशन होती है। एंड विथ हर लिटल बर्ड फार आउट साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली। और जब वो बर्ड था जो उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस किया। व्हेन हर सिस्टर नो व्हाट हैड हैपन दे मॉन्क्ड हर एंड सेड दैट द लिटल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। जब उसकी बहनों को पता चला तब उसकी मजाक उड़ाई और उन्होंने उसको जलाते हुए कहा कि ये बर्ड जो है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। बट ही डाइड एट लास्ट, लेकिन वो मर जाता, बराबर, उसने कहा। एंड ही सेट ऑन द सितंबर शोल्डर, बट ही डीड एट लास्ट, लेकिन वो वापस आया। ओके, और वो सितंबर के शोल्डर पर बैठा। एंड एट आउट her hand and sang her up for a beautiful song he had learned while he was flying up down to fair places of the world। जैसे ही वापस आया उसके शोल्डर के ऊपर बैठ गया और उसने उसके हाथों से खाना खाया और बहुत अच्छे अच्छे गीत भी गाए और दुनिया के बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे से वो उड़कर आया था। जो भी कुछ सीखा था वो उसको गा के सुनाया। सितंबर kept her window open a day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined। बराबर, सितंबर जो थी अपने दिन रात अपनी जो खिड़की जो थी वो खुली रखती थी, जाके जब भी उस बर्ड का मन हो, इसकी इच्छा हो तो वो वहाँ पे आए और उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाए। एंड दिस वॉज अ वेरी गुड फॉर हर, शी वॉज ग्रो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और वो ये सारे सिचुएशन के अंदर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरीड द किंग ऑफ द Cambodia and was carried on a white elephant all way to city in which the king loved। जब उसकी बड़ी हो गई तब उसकी शादी कंबोडिया के राजा से, कंबोडिया के किंग से हो गई, तो उसे एक सफ़ेद हाथी पर बिठाकर शहर में ले जाया गया और जहाँ वो जा रहा था उस टाइम पे। बट हर सिस्टर नेवर स्प्लैट विथ देयर विंडोज़ ओपन, लेकिन उनकी बहनों जो थी उन्होंने कभी भी खिड़की
कभी भी नहीं खिड़की खोलकर कभी भी नहीं सोती थी, बराबर है। सो दे ग्रो एक्सट्रीमली अगली, इसीलिए वो कैसी रह गई, अगली रह गई, एज वेल एज द डिस्क्रेडिबल, और वो झगड़ालू बन गई। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स कलिंगर्स, और जब उनकी शादी का टाइम आया तो उस राजा के जो दूसरे दरबारी थे उनसे उनकी शादी हुई। विथ अ प्राउड ऑफ अ टी एंड साइलेंस कैट, और दहेज के अंदर, विवाह के बाद समय में दहेज के अंदर राजा द्वारा उन्हें 1 पाउंड चाय और एक ब्लैक कलर की क्या दी गई, बिल्ली दी गई, बराबर है। दिस इज द स्टोरी अबाउट द प्रिंसेस सेप्टेम्बर सोमरस्ट मोगम was the writer, Mogam was the writer of this lesson, beautiful lesson। at the end जो है प्रिंसेस जो है वो किस तरीके से प्रिंसेस सितंबर की शादी होती है और उसकी दूसरी बहनें जो है वो कैसे उनके दरबारियों से, राजा के दरबारियों से शादी की करा दी जाती है। दैट इज़ द स्टोरी अबाउट द लेसन। ओके, आई होप यू गाइज विल एंजॉय एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेसन। Regarding this video, whatever the question answers are there, that I will send you through the PDF. You have to write down that in your notebook. Okay, in our next video we will discuss about new chapter, new topic. Okay friends, bye, take care.